ناظرین آداب، پیش خدمت ہے اردو خبرنامہ۔ میں ہوں شیخ انوار الحق۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ 21ویں صدی میں خواتین کی قیادت کے منتر کے ساتھ بھارت ترقی کی راہوں پر گامزن۔ من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی کا اظہار خیال۔ وزیر اعظم نے سپریم کورٹ ڈائمنڈ جبلی تقریبات کا کیا افتتاح۔ کہا نئے قوانین دے رہے ہیں خوشحال مستقبل کی ضمانت۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں زرعی یونیورسٹی کونسل کی میٹنگ منعقد۔ کئی پروجیکٹوں کو دی گئی منظوری۔ اور سری نگر جموں ریلوے پروجیکٹ پر کام جاری۔ بانیہال اور کھڑی کے درمیان ریل چلانے کا تجربہ کامیاب۔ اب پیش خدمت ہے ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت 21ویں صدی میں خواتین کی قیادت کے منتر کے ساتھ ترقی کے منازل کی جانب گامزن ہے۔ آج اپنے ریڈیو پروگرام من کی بات میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایودھیا میں اس مہینے کی 22 تاریخ کو ہوئی پران پرتشٹھا نے کروڑوں ہم وطنوں کو وحدت کے ایک دھاگے میں متحد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شری رام کا راج بھارتی آئین تیار کرنے والوں کے لیے ترغیب کا ایک وسیلہ تھا۔ 22 جنوری کو ایودھیا میں نے دیو سے دیش کی بات کی تھی، رام سے راشٹر کی بات کی تھی۔ ساتھیوں، ایودھیا میں پران پرتشٹھا کے اوسر نے دیش کے کروڑوں لوگوں کو مانو ایک سوتر میں باندھ دیا ہے۔ سب کی بھاونا ایک، سب کی بھکتی ایک، سب کی باتوں میں رام، سب کے ہردے میں رام۔ دیش کے انیکوں لوگوں نے اس دوران رام بھجن گا کر انہیں شری رام کے چرنوں میں سمرپت کیا۔ 22 جنوری کی شام کو پورے دیش نے رام جیوتی جلائی، دیوالی منائی۔ اس دوران دیش نے ساموہکتا کی شکتی دیکھی، جو وکست بھارت کے ہمارے سنکلپوں کا بھی بہت بڑا آدھار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج کا پروگرام سال 2024 کا پہلا پروگرام ہے اور امرت کال میں دیش کے لوگوں میں نیا جوش اور ولولہ پایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت بجا طور پر مادری جمہوریت ہے اور یوم جمہوریہ جیسے تہوار ملک کو اور بھی مستحکم بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوم جمہوریہ کی پریڈ کے دوران ناری شکتی کا بھرپور مظاہرہ ہوا۔ اس بار 26 جنوری کی پریڈ بہت ہی ادبھوت رہی، لیکن سب سے زیادہ چرچا پریڈ میں ویمن پاور کو دیکھ کر ہوئی، جب کرتویہ پتھ پر کیندریہ سرکشا بلوں اور دلی پولیس کی مہیلا ٹکڑیوں نے قدم تال شروع کیا تو سبھی گرو سے بھر اٹھے۔ مہیلا بینڈ کا مارچ دیکھ کر، ان کا زبردست تال میل دیکھ کر دیش ودیش میں لوگ جھوم اٹھے۔ اس بار پریڈ میں مارچ کرنے والے 20 دستوں میں سے 11 دستے مہیلاؤں کے ہی تھے۔ ہم نے دیکھا کہ جو جھانکی نکلی اس میں بھی سبھی مہیلا کلاکار ہی تھی۔ جو سانسکرتک کارکرم ہوئے اس میں بھی قریب 1500 بیٹیوں نے حصہ لیا تھا۔ وزیر اعظم نے پدم ایوارڈز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایوارڈ پانے والے افراد ملک کی خوشحالی اور ترقی میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ نریندر مودی نے اعضا کے عطیے کے موضوع پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے برسوں کے دوران 1000 سے زیادہ افراد نے اپنی موت کے بعد اعضا کے عطیے کی وصیت کی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے دور میں بھی ریڈیو پورے ملک کو جوڑنے کا ایک طاقتور وسیلہ ہے۔ رائے دہندگان کے قومی دن کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں ووٹروں کی تعداد تقریباً 96 کروڑ ہے، جو کہ پورے یورپ کی آبادی سے 1.5 گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے پہلی بار ووٹ ڈالنے کے اہل افراد پر زور دیا کہ وہ ووٹر فہرستوں میں اپنا نام درج کروائیں۔ وزیر اعظم نے کھیلو انڈیا اور پریکشا پے چرچا کا بھی تذکرہ کیا۔
मन की बात प्रोग्राम सुनने के लिए अजवादी के मुख्तलिफ इलाकों में कई नशस्तें मुनक्किद हुईं। कुलगाम में इसी तरह की एक नशस्त में कई लोगों ने शिरकत करके हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ वज़ीर आज़म का रेडियो प्रोग्राम मन की बात को सुना। उन लोगों ने कहा कि इस प्रोग्राम की बदौलत उन्हें मुल्क में जारी मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के श्रीनगर दफ्तर पर भी वज़ीर आज़म के प्रोग्राम मन की बात के नशरिये के लिए इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर पार्टी की जम्मू कश्मीर शाख के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल के अलावा दीगर कई लीडरान मौजूद थे। अशोक कोल ने कहा कि वज़ीर आज़म का रेडियो प्रोग्राम नौजवानों के लिए तहरीक का बाइस साबित हो रहा है। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली तकरीबात का इफ्तिताह किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा ने मुल्क की जमहूरियत और जमहूरी इदारों को मुतहर्रिक व मुस्तहकम बनाने में एक अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि भारत में जो नए कवानीन मोरिज़ वजूद में लाए जा रहे हैं वो मुल्क के खुशहाल मुस्तकबिल की ज़मानत फराहम करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी की बदौलत इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बन रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत की तामीर के लिए 8 अरब रुपए की रकम को मंजूरी दी गई है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने अवाम दोस्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुहिम का आगाज़ किया। तकरीब पर भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने ख्यालात का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आज ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर की 34वीं यूनिवर्सिटी काउंसिल मीटिंग मुनक्किद हुई। राजभवन जम्मू में मुनक्किदा इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई के अलावा दीगर कई आला हुक्काम मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों की साइंसी तरक्की के लिए यूनिवर्सिटी के रोल की सताइश की। उन्होंने कहा कि ज़राअत का शोबा जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियात में अहम रोल अदा करता है। मीटिंग के दौरान यूनिवर्सिटी के लिए मसनवी ज़हानत और ज़राअत के शोबे में मशीन लर्निंग के मराकज़ के अलावा दीगर कई सहूलियात के क़याम को मंजूरी दी गई। जल शक्ति की मरकजी वजारत ने जम्मू कश्मीर में साल 2024-25 के दौरान स्वच्छ भारत मिशन की अमल आवरी के लिए तरतीब दिए गए मनसूबे को मंजूरी दी है। वजारत के सेक्रेटरी विनय महाजन की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग में बताया गया कि सालाना मनसूबे के लिए 3 अरब 65 करोड़ 42 लाख रुपए मुख्तस रखे गए हैं। इस रकम की मदद से जम्मू कश्मीर में कई अहम प्रोजेक्ट तामीर किए जाएंगे। कश्मीर को रेल के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए रेलवे प्रोजेक्ट पर शदोमत से काम जारी है। इस प्रोजेक्ट के बेशतर हिस्से पर काम मुकम्मल किया जा चुका है। शुमाली रेलवे के एहतमाम से आज बानीहाल रेलवे स्टेशन से खड़ी रेलवे स्टेशन तक रेलगाड़ी चलाने की दूसरी आजमाइश आज कामयाबी के साथ अंजाम दी गई। हमारे नुमाइंदे ने हुकाम के हवाले से खबर दी है कि 111 किलोमीटर तवील कटरा बानीहाल सेक्शन पर काम आखिरी मरहले में है। इस दौरान जम्मू राजौरी कौमी शाहरा पर आज 700 मीटर लंबी नौशेरा टनल को आमदरफ्त के लिए खोला गया। इस सिलसिले में हुई तकरीब पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के DG लेफ्टिनेंट जनरल राघव श्रीनिवासन ने टनल की इफ्तिताई रस्म अंजाम दी। इस टनल की तामीर 7 माह कबल शुरू की गई थी और इससे जम्मू और राजौरी के बीच फासले में 11 किलोमीटर की कमी आएगी। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए DG ने कहा कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सरहदी इलाकों में ट्रांसपोर्ट निज़ाम में बेहतरी लाने और सड़कों की तामीर और तजदीद के लिए अहदबंद है। पिछले 6 साल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तालीम की मरकजी वजारत ने कहा है कि इस साल के परीक्षा पे चर्चा के लिए 2 करोड़ 26 लाख तलबा, असातिज़ा और वालिदैन ने इंदराज कराया है। परीक्षा पे चर्चा का 7वां प्रोग्राम कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। तकरीबन 3000 शुरा वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करेंगे। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाली 2 तालिबात आबिया गुलजार और सैयदा शौकत ने पिछले बरस पुणे महाराष्ट्र में हुए राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में अपना साइंसी प्रोजेक्ट नुमाइश के लिए रखा था। रियाजी मजमून से ताल्लुक़ रखने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए दोनों तालिबात की अपनी स्कूल की जानिब से इज्जत अफजाई की गई। इन तालिबात में इस तरह के प्लेटफार्म मुहैया करने के लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया गया। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा तालिब इल्मों के लिए इंतहाई मुफीद प्रोग्राम है। I'd also like to thank Honorable Prime Minister
who is one of the most important person in our countries, who has provided different platform for us students. And this, in fact, is one such government organized program. It was, in fact, organized by SCRT Maharashtra and in collaboration with the government of Maharashtra itself. Pariksha Pe Charcha is one such program which is organized by Prime Minister Modi. And as I said, that he has done so much for our country and so much for us young buds. And I'd like to appreciate him for his effort and also for his direct interaction with the students through this Pariksha Pe Charcha initiative, which is initiated by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. And I would like to thank government and him for initiating such a great initiative in which we can talk to the PM directly. The students, teachers, and everybody can get in touch with. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इंसानियत की बका के लिए आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक लाजमी है। सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मदीना शरीफ में से दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन का मसला एक इंसानी मसला बन गया है और आलमी ताकतों को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। मदीना मुनव्वरा में उम्रा की अदायगी के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आलमी इंसानियत खुसूसन जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली के लिए दुआ की है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने आज सांबा जम्मू में एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। आज़ाद ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की हैसियत से खिते की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाया और तरक्याती प्रोजेक्टों में काम के डबल शिफ्ट को मुतारिफ किया। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आने की सूरत में वो जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। मरहूम फारूक बड़गामी की 20वीं बरसी के मौके पर आज बड़गाम में एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कई कलमकारों और अदीबों ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने फारूक बड़गामी की अदबी और इल्मी कारनामों पर रोशनी डालते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। मरहूम फारूक बड़गामी की 20वीं बरसी के मौके पर आज बड़गाम में एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कई कलमकारों और अदीबों ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने फारूक बड़गामी की अदबी और इल्मी कारनामों पर रोशनी डालते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। पटन के गोशबुग इलाके में आज सागर कल्चरल फोरम के एहतिमाम से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अदीबों, कलमकारों और शायरों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान एक महफिल मुशायरा मुनक्किद हुआ, जिसमें कई शोरा ने हाज़रीन के सामने अपना कलाम पेश किया। प्रोग्राम की पहली नशस्त में सूफ़ी शायर गुलाम रसूल यत्तू दागदार की शायरी मजमूए कलाम दागदार की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। इस नशस्त की सदारत मौरूफ शायर अब्दुल अहद मलिक ने की। सरहदी हिफाजती फोर्स के एहतमाम से मस्जिल कपवाड़ा के एक दूर दराज गाँव दबपुल में आज एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक्किदा इस कैंप के दौरान इलाके के सैकड़ों अफराद की तिबी जांच की गई, जबकि मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मकामी लोगों ने तिबी कैंप के इनेकाद के लिए BSF का शुक्रिया अदा किया। छोटी सन्नतों की मरकजी वजारत ने भारतीय फौज के इश्तराक से बांडीपुरा के गुरेज सेक्टर के बख्तूर इलाके में LOC के नज़दीक नौजवानों के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम किया है। इस मरकज़ में इलाके के नौजवान लड़कों और लड़कियों को मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत फराहम की जाती है। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में पिछली शब के दौरान बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज सुबह तक जारी रहा। गुलमर्ग में कई इंच बर्फ जमा हुई है, जिसके नतीजे में वहां मौजूद सयाहों में खुशी की लहर दौड़ गई। बर्फबारी की खबर मिलते ही श्रीनगर में मौजूद बेशतर सयाह गुलमर्ग की तरफ जाते हुए देखे गए। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मुतअद्दिद मकामात पर बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن اختتام پذیر ہوا۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آداب۔